حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو بار بار نصیحت کی کہ زکات دو، اپنا خیال کرو، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اپنے نفس پر ظلم نہ کرو۔ تو قارون کو چڑ ہو گئی، کس سے؟ یعنی اپنی زبان میں قارون کو غصہ آیا، کس سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو قارون کو چڑ ہو گئی موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو اس کمبخت نے اور اس بدبخت نے کیا کیا؟ ایک عورت خریدا بہت خوبصورت، اور اس کو ٹھیک ٹھاک پیسے کی لالچ دے دی کہ میں تجھے بہت زیادہ پیسے سے نوازوں گا، تو نے صرف یہ کرنا ہے، معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، معاذ اللہ تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگانی ہے، بدکاری کی تہمت لگانی ہے۔ جب عورت کسی پر فحش تہمت لگاتی ہے، بری تہمت لگاتی ہے، تو لوگ فوراً یقین کر لیتے ہیں کہ یہ عورت کہہ رہی ہے، خود عورت کہہ رہی ہے۔ یاد رکھو، عورت کی تہمت پر یقین رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ عورت ہمیشہ تہمت لگاتی ہے، مگر خواتین تہمت لگانے میں کسی سے دشمنی ہو جائے تو سب سے بڑا حربہ، سب سے بڑا ہتھیار عورت کے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بری تہمت لگانا، اس کے اوپر فحش تہمت لگانا کہ میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ وہ کیا، اور اس موقع پر رونے کی اچھی خاصی ایکٹنگ بھی کر لیتی ہے وہ، جس بنیاد پر لوگ فوراً یقین کر لیتے ہیں۔ اگر یقین نہ بھی کرے لیکن لوگ تو وسوسے میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے کہ بھائی یہ عورت خود کہہ رہی ہے، تو لوگ وسوسے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن میں جہاں عورتوں کی بیعت کا ذکر آیا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ جب بھی آپ ان عورتوں سے بیعت لیں تو ان سے اس بات پر عہد لیں کہ وہ کسی پر بری تہمت نہیں لگائیں گی، کسی پر برے الزام نہیں لگائیں گی۔ لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ عورت خود کہہ رہی ہے۔ اور بنی اسرائیل ایسے بھی بدبخت اور نالائق قوم تھی، لیکن ان میں جو کامل مسلمان تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے کہ نہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی سے گناہ نہیں ہو سکتے، لیکن ان میں پھر بھی کچھ لوگ تھے جو وہم میں مبتلا ہو گئے۔ جب وہ عورت کو بلایا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، جیسے ہی عورت کی نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پڑی، وہ عورت ڈر گئی، اس کو خوف پیدا ہو گیا کہ میں کروڑوں روپے لے رہی ہوں لیکن تہمت کس پہ لگا رہی ہو، قیامت کے دن میرا بنے گا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں خوف پیدا کر دیا اور وہ عورت تہمت لگانے سے باز آ گئی۔ اس عورت نے بتا دیا کہ مجھے قارون نے پیسے دیے تھے جھوٹی تہمت لگانے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور اسی وقت بد دعا کی قارون کے لیے کہ اللہ اب اس کو کیا کر دے، ہلاک کر دے۔ وہی قارون اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھسنا شروع ہو گیا۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کو پکارتا رہا کہ موسیٰ مجھے معاف کر دے، موسیٰ مجھے معاف کر دے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب تجھے معاف نہیں کروں گا۔ آہستہ آہستہ بالآخر اپنے خزانوں کے ساتھ دھس گئے زمین میں۔ جب وہ زمین میں دھس رہا تھا تو وہی لوگ جو کل کہہ رہے تھے، قرآن کے الفاظ ہیں کہ کاش کہ ہمیں بھی اس جیسا مال و دولت مل جاتا، وہی لوگ کہنے لگے وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے مالدار بنا دے، جس کو چاہے غریب بنا دے، مجھے ان پیسوں کی اب ضرورت نہیں ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، وہ لوگ کہنے لگے اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی دولت نہیں دی۔
वही जो कल कह रहे थे कि काश के मुझे भी इस जैसी दौलत मिल जाता, लेकिन इस मंजर को देखकर क्या कह रहे हो, लौला अम्मन्नल्लाहु अलैना लखसफा बिना, कि अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि अल्लाह ने मुझे इतनी दौलत नहीं दी। तो उलमा यानी उस जमाने के जो उलमा थे और खुद मूसा अलैहिस्सलाम बार बार उनको नसीहत कर रहे, ज़कात दो ज़कात दो, बात समझ में नहीं आ रही है। जब ये मंजर देखा जमीन में धंसता हुआ तो कारून चीखों पुकार कर रहा है कि मूसा मुझे बचा लो बचा लो, और आहिस्ता आहिस्ता वो जमीन में धंसता जा रहा है। आज भी उलमा लोगों को समझाते हैं कि जिसको अल्लाह ने दिया वो ज़कात दो, लेकिन बाज़ दफा ज़कात का जिक्र करते करते लोगों को दिलों में तकलीफ होती कि ये ज़कात पे क्यों इतना बोलता। तो जैसे कारून को अजाब हुआ, इस अजाब से हमें डरना चाहिए। तो वो लोग क्या कहने लगे, लौला अम्मन्नल्लाहु अलैना लखसफा बिना, कि अगर अल्लाह का एहसान ना होता हम पर तो ये अजाब हम पे भी आ जाता। क्योंकि उन्होंने ख्वाहिश की थी कि काश के हमें भी इस जैसा मालो दौलत मिल जाता। और कहने लगे वही खुद, इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, कि अल्लाह का इनकार करने वाला कामयाब नहीं हो सकता। यहाँ एक बात समझने की है जो अवाम में एक गलत फहमी है। अवाम क्या कहती है, सब नहीं, बाज लोग क्या कहते हैं यहाँ पे कि अगर कारून अल्लाह को पुकारता तो अल्लाह तौबा कबूल कर लेता, मूसा को पुकारा। आपने भी सुना होगा, बाज लोग क्या कहते हैं कि अल्लाह को पुकारता तो अल्लाह तौबा कबूल कर लेता। बल्कि यहां तक कहते हैं कि कारून अगर एक मर्तबा भी तुम मुझे कहता कि अल्लाह मुझे बचा अल्लाह मुझे बचा लो तो मैं तुझे बचा लेता, तूने एक बार भी नहीं कहा, तो हर बार कहा कि मूसा बचा लो। अवाम ये बात कहती है, हालांकि ये बात सरासर गलत है। सुनो, जो बात कहने का है ये बात गलत है जो अवाम में मशहूर है। मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारने का मतलब यही था, जब आपकी बद्दुआ की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, यानी मैं जमीन में धंस रहा हूं, तो तुम अल्लाह से दुआ करके क्या करो, मुझे बचा लो। ये कारून का कहने का मतलब था। उसका कहने का मतलब ये नहीं था कि अल्लाह मुझे बचा लो, नहीं, उसका कहने का मतलब था कि मूसा जब तुम्हारी बद्दुआ की वजह से मैं अजाब में मुब्तला हुआ, मैं जमीन में धंस रहा हूं, तो तुम अल्लाह से दुआ करके मुझे बचा लो। जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने इरादा कर लिया था कि अब इसको बचाना नहीं है। और पैगंबर अपनी कौम के सबसे बेहतरीन खैरख्वाह होते हैं, इसलिए याद रखो बद्दुआ देना हर सूरत में गलत नहीं होता। जब बहुत ज्यादा किसी को सताया जाए, हुदूद को तोड़ दिया जाए, शरीयत के जो अहकाम है, जो एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री से तजावुज कर जाए, उस बाउंड्री को तोड़ दिया जाए, तो फिर ऐसी सूरत में बद्दुआ देना जायज है। यहाँ में एक शुबा को दूर करता हूँ। बात लोग कहते हैं कि हमारे नबी ने कभी बद्दुआ नहीं की, ऐसा नहीं है। हाँ, हद्दुल इम्कान हमारे नबी ने बर्दाश्त किया, सब्र किया, ताइफ में पत्थर खा करके भी बद्दुआ नहीं दिए, लेकिन बात मौके पर आपने भी बद्दुआ की है। जब बहुत ज्यादा मामला हुआ, आपके सहाबा को धोखे से कत्ल कर दिया, तो आपने बाज़ाब्ता कुनूत नाज़िला पढ़ी है। इसी वजह से अगर कोई किसी के खिलाफ बहुत सख्त मजबूरी और परेशानी में आकर के बद्दुआ दे, तो ये बद्दुआ देना उसके तकवा के खिलाफ नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को बद्दुआ दिया, ये मूसा की नबूवत के खिलाफ है, ऐसा आप नहीं कह सकते। इसी तरीके से अगर कोई अल्लाह वाला किसी को बद्दुआ दे दे, आपको उंगली उठाने की इजाजत नहीं है कि आप इतने बड़े अल्लाह के वली बन चुके और इतनी सी बात पर बद्दुआ देकर उसको तबाह बर्बाद कर दिया, उंगली उठाने की इजाजत नहीं। बास मौके पर बद्दुआ देना जायज है। एक साहबे रसूल थे, उनका नाम याद नहीं, उन पर एक मर्द ने बुरी तोहमत लगाई, उन सहाबी ने बद्दुआ की, गालिबन बसरा के रहने वाले थे। फौरन उस सहाबी ने उस शख्स के खिलाफ बद्दुआ दी, उन्होंने भी झूठी तोहमत लगाई थी, गुनाह की तरफ मंसूब किया। जब वो सुबह उठा तो उसकी बीनाई चली गई।
अब लोग उन साहबे रसूल के पास आए कि आप अल्लाह से दुआ करें कि इनकी बीनाई लौट करके आ जाए। तो उन साहबी ने कहा कि अल्लाह ने ये मेरे साथ इनाम किया है कि मेरी बद्दुआ को फौरन कबूल कर लिया, अब मैं अल्लाह की इस रहमत से पीछे नहीं हटूंगा। अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है कि मैंने इधर बद्दुआ की उधर कबूल हो गई। अब लोगों के सोचने के अंदाज मुख्तलिफ होते हैं, बाद लोग गलत समझते हैं, बाद लोग समझते हैं भाई बद्दुआ कबूल हो गई, ये अल्लाह की नेमत है। तो ये भी क्या है, अल्लाह की मोहब्बत है कि भाई एक चीज मुझे अल्लाह ने दे दी है और मेरी बरात का ऐसा ऐलान कर दिया कि पूरी दुनिया को बता दिया कि जो ये तोहमत और इल्जाम मुझ पर डाल रहा है ये गलत है, मैं सही हूं, और फौरन बद्दुआ कबूल करके इसको अंधा बना दिया कि ये गलत है। तो अल्लाह ने मेरे साथ इकराम किया, इनाम किया, तो मैं अल्लाह की इस इनाम और इकराम से कैसे पीछे हट सकता हूं? मैं पीछे नहीं हटूंगा। अल्लाह की इस रहमत को कबूल मैंने कर लिया और इसकी बिनाई की वापसी के लिए मैं दुआ नहीं कर सकता। तो जो अहलुल्लाह होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, वो बेहतर फैसला करते उस मौके पर कि हमें दुआ करनी चाहिए या बद्दुआ करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल हमारे नबी की सीरत में बर्दाश्त और सब्र का पहलू बहरहाल गालिब है। छोटी छोटी बातों पे बद्दुआ दे देते हैं, और खवातीन का क्या कहना, ये तो हर बात पे बद्दुआएं देती है। बस अल्लाह का शुक्र है कि बद्दुआ कबूल नहीं होती। ये बच्चों को भी बद्दुआ देती है कि तेरा नाश हो जाए, कहीं जाके तुम मर जा। मन तो करता है, दिल तो करता है कि तेरी शक्ल कभी ना देखूं। मन अल्लाह करे तू कहीं जाकर के डूब के मर जाए, अल्लाह करे ऐसी औलाद किसी को ना दे। लेकिन उन्होंने यानी माँ बाप ने जो औलाद पर जुल्म किया वो जुल्म उनको याद नहीं आता। अब जब बच्चा जुल्म कर रहा है, गलती कर रहा है, तो क्या माँ बाप क्या करते हैं? बद्दुआएं देते हैं। वो गलती क्या किया? बच्चे को अच्छी तरबियत करते, इस्लाम की तालीम देते, दीन सिखाते, वो काम तो किया नहीं, अभी क्या है? बद्दुआएं दे रहे हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन को औलाद के हक में बद्दुआ देने से मना किया। कबूलियत की घड़ी होती है। जैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में बहुत जल्दी कबूल हो जाती है, इसी तरीके से माँ बाप की बद्दुआएं भी औलाद के हक में बहुत जल्दी कबूल हो जाती है। इसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप को मना किया कि औलाद को बद्दुआ मत दिया करो, क्या पता वो कबूलियत की घड़ी हो और वो कबूल हो जाए, बाद में तुम पछताओ।